मैं तेनू कही ना गुंडागर्दी मैंने तेनू कहता ना इन्होंने फालतू की गल ना कर मेरे नाल। हां तू टप्पना ना टप जा। किसी को धक्के से खीर खिलाई जाए, वो आपको भूख नहीं लगी, आपके मुंह में हम खीर डालेंगे, आप खा लेंगे क्या? जब किसी को भूख नहीं, हम जब हम किसान चाहते कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो क्या धप्पे से सोकने आगे उसने? किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। और मैं आपको इतनी बात जरूर बता देता हूँ कि ये वो भूल जाएं कि ये आप लटकाए रखेंगे और कभी न कभी ये छोड़कर चले जाएंगे। और अडानी अंबानी का पैसा बढ़ रहा है, ये पंच चमत्कार मैंने तो आज तक देखा नहीं भी कि इस तरह का। सारा देश तो भूखा मर रहा है और उस देश के उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं, ना तो कार बिक रही है ना कपड़ा बिक रहा है। वो अपनी ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नमस्कार, मैं हूं मिट्टू राजपूत और आप देख रहे हैं सेकंड न्यूज़। जिस प्रकार से पूरे देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है और आज किसान आंदोलन को लगभग 4 महीने हो चुके हैं और इसी मौके पर आज एक बार फिर से किसान मोर्चा ने यहां पर पूरे देश भर में एक बार फिर से हड़ताल की है और आप देख सकते हैं पूरे देश भर में जगह जगह सड़कों पर आपको किसान देखने को मिलेंगे। वैसे ही श्री गंगानगर रोड पर आप देख सकते हैं किसान बैठे हुए हैं और हड़ताल करके चक्का जाम करके बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनसे हम खास बातचीत करते हैं कि आखिर इनका मकसद क्या है, किस कारण से बैठे हुए हैं, इनसे ही जान लेते हैं। ਅਸੀਂ किसान जो मोदी ने काले कानून बनाए है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੋਲ ਨਾਕੇ 18 ਬੀਬੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਠੋਪੇ ਗਏ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਧੱਕਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਐਡੀਟੇਸ਼ਨ ਉੱਠਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ 2 ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਦੇ 2, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ पूरा अमल करके उन्होंने मान लवे, ये ही चीज भी ओदा भला है। मोदी जी कह रहे हैं कि जो कानून हमने लाया है, जब हमने वो लागू किया था
एमएसपी पर खरीद भी बढ़ी है, कि उन्होंने ये भी कहा है कि मंडियां हैं वो चल रही है, ना तो मंडियां बंद हुई है। मतलब जब से लागू किया गया है कानून, किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं हुई है। कोविड-19 के अंदर उसको ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? लोकसभा में बिल आता, वहां पर इन कानूनों के हक में उस पर चर्चा होती। राज्यसभा में जिस तरह उन्होंने पास करवाया, फाड़ के जबरदस्ती पार कराया, क्या वो मतलब सही है? अगर किसी को धक्के से खीर खिलाई जाए, वो आपको भूख नहीं लगी, आपके मुंह में हम खीर डालेंगे, आप खा लेंगे क्या? जब किसी को भूख नहीं, हम जब हम किसान चाहते हैं कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो क्या धप्पे से सौंकने आएगा उसने? आप कहते हैं भले की, वो तो कहेगा उसने तो अंडा नहीं मानी का घर भरना है, वो तो बहुत कुछ कहेगा, लेकिन किसान और मजदूर इसको बिल्कुल एकदम इसको कैंसिल करते हैं। आज ना हमें ये मंजूर है, ना कल मंजूर है, कितना लंबा भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। उसने तो जब कानून लाया, वो उसने तो बनाया है, वो तो कहेगा कि किसानों के हक में है, लेकिन किसान कोई ऐसे मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे हैं, किसान वकील हैं, सरकार हमारे जज हैं, प्रशासन के बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको पता है भी ये कानूनों को क्या मिलेगा। कुछ नहीं है, एमएसपी भी खत्म होगी, मंडियां भी खत्म होंगी, सारा ही कुछ, सारा ढांचा खत्म होगा। और एक जो अंडानी अंबानी भी नहीं है, उनके पीछे जो विश्व लेवल के जो व्यापारी हैं उनका हाथ है, और ये मोदी उनसे सब बिका हुआ है, उनकी बात मानता है, और चार आदमियों की बात सुन के वो कहता है जी बड़े भले की बात है। बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल ही इसके हक में नहीं है, हमें मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो एक बात कही थी मोदी जी ने, कहते जो आंदोलन हो रहा है ना, उनको विपक्ष भड़का रहा है। मतलब ये कांग्रेस क्या कर रही है कि भय पैदा कर रही है किसानों में, ठीक है, अपने फायदे के लिए, कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारी ज़मीनें ले ली जाएगी, तो ये भय पैदा किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। उनका यही कहना है मोदी जी का कि ये सब काम कांग्रेस के हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसान को इतना बिल्कुल अनपढ़ नहीं है कि उसको पता है भी कौन भड़का रहा है। कोई नहीं भड़का रहा। किसान अपने आप, अपनी जो आने वाली उसकी पीढ़ी का जो उसको पता है कि किसानी से अलग जो हो जाएगी, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसके लिए किसान समझदार है, इस बात को समझता है। वो किसी के भड़काव में नहीं है। ठीक है, ये बात कह के वो ये निकले कि उनको पार्टियां भड़का रही हैं, बिल्कुल गलत बात है। किसी को कोई नहीं भड़का रहा। किसी राजनीतिक पार्टी को दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ भी मोर्चे लगे हुए हैं, राजनीतिक किसी भी आदमी को स्टेज पर बोलने दिया जाता। यहाँ पर भी जो हमारे पंचायतें होती हैं, वहाँ पंचायतें होती हैं, उसके अंदर भी राजनीतिक आदमी कोई स्टेज पर चढ़ के बोलता नहीं। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उनकी कोई बात नहीं मानता। किसी के कहने पर कुछ नहीं चल रहा, ये अपने आप चल रहा है और चलता रहेगा। किसान के बच्चे तो पहले खेती से दूर हो रहे हैं। जब उस किसी ने 10 या 20 या 30 साल के लिए दे दी, ज़मीन लीज पे दे दी, तो वो ज़मीन बाद में धीरे धीरे ये कंपनियां हैं ना, इनको लूट के ले जाएंगी। वो तो ज़मीन छोड़ देंगे, और इनके बच्चे हैं जो कंपनियों के, इनके जो फैक्ट्रियां लगाएंगी कृषि उत्पादों का, जो मतलब परिष्कृत करके जो नए नए उत्पाद बना के बेचेंगी। किसानों के बच्चे एक बार तो उन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। ये जो सरकार का डीएलसी रेट है, उसी रेट पर बैंकों द्वारा बोली करवा के ज़मीनें किसानों से लूट लेंगे, और किसान बर्बाद हो जाएंगे। और जनता का इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जब किसान ही बर्बाद हो गया, खेती पर 58% लोगों को रोज़गार मिलता है, तो वो जो है, जब बड़े बड़े खेत बन गए, बड़ी बड़ी मशीनरी चलेंगी, जहाँ पर 500 आदमी काम करता है, वहाँ पर सिर्फ 5 आदमी करेंगे। जो दूसरे आदमी हैं जो कितने बेरोजगार आएंगे, देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ेगी, तो इसको अपने सफ़ेद कानून कैसे कह देंगे? तो काला ही है। व्यापारी भी इसमें साथ दे रहे हैं, आपका कहा जा रहा है कि व्यापारी लगभग सभी साथ दे रहे हैं। व्यापारी साथ दे रहे हैं, क्योंकि मंडियाँ जब जैसे ये कहते हैं ना भी एमएसपी है, रहेगी और थी, तो जब ये मंडियां खत्म हो जाएंगी तो कहां पर एमएसपी देंगे? देश के प्रधानमंत्री को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? किसानों के द्वारा क्या मैसेज आप देना चाहते हैं, बताइए। हम चाहते हैं मोदी जी जमीन पर पैर रखें, हवाई जहाजों में मत उड़ें। कुछ नहीं पड़ा हवाई जहाजों में। मोदी जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। कोई जो आजकल जो पैमाना तरक्की का माना जा रहा है ना, जो खुशी के लिए जीते हैं लोग, पैमाना नए तरीके से दुनिया ने गढ़ा है। जो पहले तो था भी जिसके पास पैसा जाता है उसको खुशी मिलती है। अब जो खुशी वाली बात है ना, वो जो मतलब उसका पेट भरा होना चाहिए,
और उसके आसपास के लोगों के साथ रहने में, उसके वातावरण में हर तरफ से बीमारी से दूर होना चाहिए। वो उसका मन खुश होना चाहिए। इसको मतलब पैमाना, तरक्की का पैमाना उस चीज़ को माना जाता है। हमारी सरकार क्या है, केंद्रीकरण कर रही है हर एक चीज़ का। पैसे का 5-4 लोगों के हाथ में पैसा देना चाहती है। देश की जीडीपी तो लगभग 25-30% नीचे आ गई और अंडानी अंबानी का पैसा बढ़ रहा है। ये जो चमत्कार मैंने तो आज तक देखा नहीं भी कोई इस तरह का। सारा देश तो भूखा मर रहा है और उस देश के उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं। ना तो कार बिक रही है, ना कपड़ा बिक रहा है, कोई चीज़ बिक ही नहीं रही है। उनकी तरक्की कैसे हो रही है? अच्छा, अब आप फाइनल बात बता दीजिए कि क्या आगे की रणनीति क्या है जी? रणनीति तो दिल्ली में जो हमारे बैठे हैं किसान नेता, वो तो रणनीति तो वहाँ बनती है, हम कुछ नहीं बना सकते। हमने तो उनके आदेश की पालना करनी है। और मैं आपको इतनी बात जरूर बता देता हूँ कि ये वो भूल जाएं कि ये आप लटकाए रखेंगे और कभी न कभी ये छोड़कर चले जाएंगे। किसान जो 1906 में किसानों के विरुद्ध अंग्रेज सरकार ने कानून बनाए थे, को उस टाइम भगत सिंह के चाचा जी अजीत सिंह ने रहनुमाई करके 9 महीने एडिटेशन चला था और अंग्रेज सरकार को गोडे टेकने पड़े थे। 9 महीने के बाद उनको कानून वापस लेने पड़े थे। और अब हमारे को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो हमारे देश के अंदर 19 महीने लड़ाई चली। 19 महीने, अब हमें 19 महीने की बाय भले हमें 24 महीने लड़ाई लड़नी पड़े, हम लड़ेंगे और इन कानूनों को वापस करवा के रखेंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से किसान अपना रोष है वो प्रकट कर रहे हैं और एक ही मांग रख रहे हैं कि जो काले कानून बनाए गए हैं उनको मोदी सरकार जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो ये धरने हैं, ये प्रदर्शन है, ये हड़ताल है, ये हमेशा होती रहेगी। इनका यही कहना है। आप हमारे साथ बने रहिए देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए। अभी सेकंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।